Hello, you're watching CVR News English. This is Savila Kottapalli. Welcome to Inside News. Well, moving to the details, India's G20 Sherpa Amitabh Kant emphasized the significance of India's leadership in bringing the African Union into the G20, marking a historic expansion to G21. Well, Kant noted that this inclusion has increased the group's global influence, with G20 now representing 85% of the world's GDP, 84% of global trade, and nearby 80% of the global pollution. Well, he also described this development as a major step towards making the G20 a more inclusive and representative body. Will be touched upon by the Foreign Secretary, but I'll touch upon the G20 aspect of it. But let me first say that the Global South, this is the first time that the G20 was held in Indonesia, then it was held in India, was Brazil, and then now the baton has been passed on to South Africa. So emerging markets will have to play a very critical role, and if you look at the global growth, while the developing countries are growing at 1.8%, emerging markets are growing at about 4.4%. That means, and according to both IMF and World Bank, for the next 4 decades, 70% of the growth is going to come from the Global South. That is simply because of demographics. And this requires more financial flows to be passed on to the Global South countries. And if you look at this particular G20, other than both for hunger and poverty, the focus on inequality, the focus on sustainable development goals, the focus on digital public infrastructure, the focus on nutrition, all that demonstrates the huge commitment that was made. To my mind, both development and climate action are two sides of the same coin, and therefore climate was also very critical. We were very mindful of the fact on climate not to get into too many specific, other than saying we'll move from billions to trillions or we'll lay down an ambitious NCQG. It was very difficult to get into details because simultaneously, this is the first time that simultaneously you were having a COP at Baku which is going on, and any getting into too many details would have had a very adverse implication on negotiations there, and therefore we were very careful. But we've reiterated the need for tripling of renewable energy, we've reiterated the need for doubling energy efficiency, we've talked about green hydrogen and many other factors. So this is if you read the document in its totality, it's very much a document of the global South. And I would merely say that if you look at the geopolitical paras of this particular G20 declaration, it talks about a comprehensive ceasefire in Gaza in line with the UN Security Resolution 2735, and in Lebanon, both in Gaza and in Lebanon, and that will enable citizens to return safely to their homes on both sides of the blue line. It also talks about the commitment to the vision of a two-state solution where Israel will be touched upon. Well, the Tirumala Tirupati Devasthanam Board has announced that non-Hindu employees must voluntarily retire, affecting around 300 staff members. Well, this decision has triggered politically controversy, with BJP leader Madhavi Lata supporting the move, stating that only Hindus should be employed in temple roles, and the policy shift has intensified debates over religious representations in public instructions. हम अपने मंदिरों में सिर्फ हिंदुओं को ही तैनात करेंगे और सिर्फ उनको ही नौकरियां देंगे। मुंबा देवी के क्षेत्र में स्थित सिद्धिविनायक मंदिर को भी ये वक्त अपना कहता है, सिर्फ हिंदू को ही मंदिरों में नौकरी देना चाहिए। अब से, आज से, इसी वक्त से हम इस निर्णय को लेंगे और इसको लेके आगे बढ़ेंगे। आज भारत के हर हिंदू के सामने एक मुद्दा ही नहीं, एक ऐसा सोच विचार के प्रति एक कड़क निर्णय लेने का समय आ गया है। हमारे तिरुपति बालाजी के मंदिर में
जो नए नए नियुक्त हुए हैं, जो चेयरमैन साहब है, उन्होंने ऐसा एक निर्णय ले लिया है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में सिर्फ हिंदू ही कर्मचारी रहेंगे और कोई दूसरे धर्म या मजहब के लोगों को यहाँ पर काम करने का मौका नहीं मिला जाएगा। तो इसका बहुत बात का पतंगड़ बना जा रहा है। मैं एक हिंदू होने के तहत, एक सनातनी होने के नाते पूरे भारतवासियों से, हिंदुओं से यही अनुरोध करती हूँ कि इनमें ये मजाल कि इस बात को पतंगड़ भी बनाए। अभी बहुत हो गया है, अरसों से, सालों से हम लोग इनको अपने कान देते आए हैं। शायद इसीलिए ये लोग हमको कमजोर समझते आए हैं। हम अच्छे हैं, कमजोर नहीं हैं। हम अपने Well, BJP National President and Union Minister JP Nadda praised the film The Sabarmati Report, calling it a factual portrayal of the Godhra incident and aftermath. Well, also speaking at the film screening, Nadda claimed that Congress and other political forces, along with left liberals, had tried to suppress the truth surrounding the tragedy. He also congratulated the filmmakers for their courage in depicting the events and urged the public to watch the movie with their families to understand the full reality of the massacre and the burning of Kasarbags. The साबरमती रिपोर्ट, ये फिल्म जिसे आज हम सब लोग यहाँ देखने आए हैं, यह फिल्म सच्चाई के आधार पर यह फिल्म है और ये सच्ची कहानी है। जो घटना घटी गोधरा की, उसके बारे में ये सच्चाई बयान करती है। दुर्भाग्य ये है कि इस देश में सच्चाई को सामने आने में 22 साल से ज़्यादा लग गया और जो गोधरा कांड का जो सच्चाई है उसको इस फिल्म ने बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं और जिसके नेतृत्व हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किया है और उनके सहयोगी दलों ने मिल करके देश की जनता से सच्चाई को छुपाने में उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन सच्चाई बाहर आई है। उसी तरीके से ये जो हमारे सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल और लिबरल फोर्सेस, उन्होंने भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम के तहत ये कोशिश की कि सच्चाई सामने न आए और तुष्टीकरण की राजनीति में और लिबरल्स के नाम पर उस पे ऊपर मिट्टी डाली जाए, इस बात का प्रयास हुआ है। मैं फिल्म के निर्माता, फिल्म के निर्देशक और फिल्म के सभी आर्टिस्ट्स को, कलाकारों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इसमें अदाकारी की है। उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है। मुझे मालूम है कि किस वातावरण में जो लेफ्ट और लिबरल्स और अपीजमेंट करने वाली पॉलिटिक्स के जो इकोसिस्टम है, वो किस तरीके से सच्चाई बयां करने वालों के पीछे पड़ते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है। मैं इनको बधाई देता हूं और साथ में मैं आपके माध्यम से देश की जनता को ये निवेदन करता हूं कि आप सब लोग ज़रूर परिवार के साथ द साबरमती रिपोर्ट देखें और जानें कि किस तरीके से नरसंहार हुआ था, किस तरीके से गोधरा कांड हुआ था और किस साजिश के तहत जो हमारे कार सेवक थे उनको जिंदा जलाया गया था। पहली बार उनके नाम सामने आए हैं। इतनी 22 साल घटना घटे। Meanwhile, Union Minister of State for Social Justice and Empowerment Ramdas Atewale commented the recent attack. Recent attack on former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh, asserting that BJP has never resorted to violent tactics. लेकिन अनिल देशमुख पर एक हमला हुआ है। अनिल देशमुख पर किस तरीके से हमला हुआ, बीजेपी जो है ये कह रही है कि ये स्टंट है, केवल जो है हारने वाले हैं इसके लिए इस प्रकार से जो है हमला किया गया है, खुद ने खुद के ऊपर हमला किया। मुझे लगता है कि बीजेपी का जो कहना है कि जिस तरह हम लोग लोकतंत्र में काम करते हैं और जिसको ज्यादा वोट मिलता है वो लोग चुन कर आते हैं, जिनको ज्यादा सीट मिलती है वो सरकार बनाते हैं, वो सत्ता में आते हैं।
लेकिन बीजेपी की तरफ से ऐसे कभी हमले और गुंडागर्दी का काम नहीं हुआ है। मतलब बीजेपी अपना भूमिका लोगों के सामने रखती है, इसीलिए अनिल देशमुख जी फॉर्मर होम मिनिस्टर भी हैं, नागपुर के नेता भी हैं, शरद पवार जी के साथ वो मतलब बहुत उनके नजदीक भी है, हमारे अच्छे मित्र भी है। तो जो भी मतलब अभी हमला हुआ या क्या हुआ इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। तो किसी ने हमला किया होगा तो इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह बीजेपी का कहना है कि हमें मतलब किसी पर हमला करने की बिल्कुल जरूरी नहीं है और हमारा कोई ऐसी गुंडागर्दी में विश्वास नहीं है, इसीलिए बीजेपी के मत से मैं सहमत हूं कि भाई यहाँ क्या हमले का क्या हुआ इसकी पूरी जांच पुलिस करे। लेकिन Meanwhile, BJP national spokesperson Shehzad Poonawala slammed the Maha Vikas Aghadi, calling it Maha Vasuli Aghadi and accusing the alliance of ongoing extortion and corruption during and after its tenure in power. He also raised questions about alleged crypto corrections, specifically asking the Congress leaders Nana Patole and Supriya Sule whether they were involved in illegal Bitcoin transactions and if money from foreign sources was funneled through these transactions to influence elections. महा वोट बैंक अघाड़ी ही नहीं बल्कि महा वसूली अघाड़ी भी है। और वसूली जब सरकार थी तब भी चल रही थी। किस प्रकार से उद्योगपति के घर में बम लगाकर कैसे वसूली 100-100 करोड़ की उनके गृह मंत्री कर रहे थे वो भी हमने देखा। और जब सत्ता के बाहर चले गए तब भी भ्रष्टाचार और वसूली की दुकान, यही एमवीए की पहचान। अब तो बिट बाय बिट इनका क्रिप्टो करप्शन सामने आ गया है। आज सवाल सिर्फ इतना बनता है, नाना पटोले जी और सुप्रिया सुले जी, क्या आप बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन करवा रहे थे? क्या ये वैध ट्रांजैक्शन था? क्या विदेशी स्रोत से इस ट्रांजैक्शन के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करने के लिए पैसा आ रहा था? क्या चैट्स और जो ऑडियो टेप आया है सामने उसमें आवाज आपकी है या नहीं है? क्या आप इस मेहता और गुप्ता को जानते हैं या नहीं जानते हैं? क्या आप इस बिटकॉइन ट्रांजैक्शन में शामिल है या नहीं है? बिट बाय बिट करप्शन के क्रिप्टो ट्रांजैक्शन की पोल खुल गई है। एक तरफ सज्जाद नोमानी से और मुफ्ती सलमान से किस प्रकार से वोट बैंक की दुकान चलाई और दूसरी तरह कैसे भ्रष्टाचार की दुकान चला रहे हैं। ये वोट बैंक की दुकान, भ्रष्टाचार की दुकान, यही एमवीए का काम है, यही एमवीए की पहचान है। और इसीलिए आज इन पर स्पेसिफिक जवाब आने चाहिए, इधर उधर भागना नहीं है। ये भ्रष्टाचार वसूली की अघाड़ी है, ये मुल्ला वोट बैंक अघाड़ी है। ये केवल मुस्लिम वोट बैंक को समेटने के लिए और भ्रष्टाचार के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करने के लिए वोट बैंक जिहाद और अब क्रिप्टो करप्शन के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करना, ये इनका एजेंडा। अब महा वोट बैंक अघाड़ी ही नहीं बल्कि महा वसूली अघाड़ी भी है। और वसूली जब सरकार थी तब भी चल रही थी। किस प्रकार से उद्योगपति के घर में बम लगाकर कैसे वसूली 100-100 करोड़ की उनकी। Well, Maha Saha, the Chief Minister of Tripura, attended the final of the 78th Santosh Trophy between Manipur and Tripura. Well, after watching the match, he expressed his appreciation for the game, commenting good game. Well, his attendance at the final underscores the importance of the tournament to the people of Tripura and his support for sports in the region. Well, Santosh Trophy is one of the India's premier football competitions, and his presence highlights the growing enthusiasm for football and in the northern east states. 78 संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट त्रिपुरा में हुआ है। 2018 में भी हुआ था और ये ग्रुप डी कैटेगरी में आता है और त्रिपुरा को लेके बाकी और 3 स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से आए हैं यहाँ पर और बहुत अच्छा लगा। यहाँ फाइनल में 2018 के बाद इस बार यहाँ पर हुआ है तो 15 इस महीना जो है 15 से शुरू हुआ है, आज खत्म हुआ। तो त्रिपुरा फाइनल में खेला है मणिपुर के साथ और अच्छा खेल हुआ है यहाँ पर। मैं थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन अच्छी तरह से मैंने उसका महसूस किया, बहुत अच्छा खेल हुआ है और मैं बधाई देना चाहता हूँ मणिपुर टीम को और हमारा त्रिपुरा टीम को
और खास करके ये लोग जिस तरह यहाँ पर खेल हुआ है और उसका जो ऑर्गेनाइजर है त्रिपुरा फुटबॉल एसोसिएशन और उनका पूरा टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अच्छा काम किया है। हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट भी अच्छा काम किए हैं, लाइन डिपार्टमेंट बाकी सभी अच्छी तरह से यहाँ पर अपना अपना काम किए हैं, जिसके कारण बहुत अच्छी तरह से ये फुटबॉल मैच यहाँ पर हुआ है। सर, आज के दिन में देखा जाता है कि यूथ बहुत ही अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, क्या नहीं? देखिए, यहाँ पर जब से हम लोग टर्फ ये सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड बनाया त्रिपुरा में, अभी तक 7 जगह में हम लोग टर्फ बनाया। इससे मैंने देखा बहुत लोग अभी आ रहा है इसमें। बहुत पहले यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से खेल होता था, बीच में थोड़ा सा देखता था हम लोग, काफी लोग माने नहीं आते थे, लेकिन ये जैसे ये फ्लड लाइट लगाया, दिन रात खेल होता है, तो बहुत संख्यक अभी लोग जो जिसको कहते हैं क्रीड़ा मोदी, ये लोग आ रहे हैं अभी। बहुत अच्छा चीज है, ये होना चाहिए। और हम लोग चाहते हैं नशा मुक्त त्रिपुरा जो हमेशा कहते हैं, तो इससे अगर सब इन्वॉल्व हो, जो यूथ अगर माने इन्वॉल्व हो, तो आने वाले दिन मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा। Himachal Pradesh Governor Shiv Pratap Shukla responded to questions about the Chief Parliamentary Secretary's issues, stating that it is a matter for the court and the state government. He also noted that the court had carried out its role and the government had removed the CPS. Accordingly, Shukla added that no political party had raised complaints with him, and the only information he had was from media reports suggesting that the government might appeal to the Supreme Court. 6 के 6 CPS को हटाया गया है। ऐसी बातें आ रही हैं कि अब बीजेपी आपके पास आएगी, उनकी सदस्यता को रद्द करने की बातें उठ रही हैं। क्या इसमें लीगल एस्पेक्ट रहेगा आगे? नहीं, देखिए, अभी ये कोर्ट और सरकार के विषय का है बात। कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया, सरकार ने उनको हटाने का काम कर दिया। मेरे पास किसी भी अन्य राजनीतिक दल ने इस संदर्भ को लेकर के कोई शिकायत नहीं की है, तो मुझे इसकी कोई जानकारी है। समाचार पत्रों से सिर्फ इतनी जानकारी हुई कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में शायद गई है, सिर्फ ही वो की है। इसके अतिरिक्त मेरे पास इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है। तो अभी के वर्डिक्ट के बाद कुछ CPS को हटाया गया है, 6 के 6 CPS को हटाया गया है। ऐसी बातें आ रही हैं कि अब बीजेपी आपके पास आएगी, उनकी सदस्यता को रद्द करने की बातें उठ रही हैं। क्या इसमें लीगल एस्पेक्ट रहेगा आगे? नहीं, देखिए, अभी ये कोर्ट और सरकार के विषय का है बात। कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया, सरकार ने उनको हटाने का काम कर दिया। मेरे पास किसी भी Well, Madhya Pradesh Chief Minister Shri Mohan Yadav paid a courtesy visit to Gujarat Chief Minister Shri Bhupendra Patel in Gandhinagar. During the visit, CM Yadav was warmly welcomed by CM Patel, reflecting the cordial relationship between the two states, and the meeting provided an opportunity for both leaders to discuss the matters of mutual interest, including regional development, governance and cooperation between the respective states. Well, this visit highlights the growing political and administrative ties between Madhya Pradesh and Gujarat.
Heavy rains has lashed the city of Kerala, causing disruptions in various parts of the state. The downpour is likely to lead to waterlogging, traffic disruptions and potential flooding. In low-lying areas, Kerala's monsoon season often brings intense rainfall, and this weather system may be a part of the ongoing monsoon rains. Authorities might use alerts for vulnerable areas, advising residents to stay safe and take precautions against possible landslides or flooding. Well, heavy rains has lashed the city of Kerala, causing disruptions in various parts of the same. Well, moving on to other story, well, Delhi is expressing a severe pollution crisis with smog engulfing parts of the national capital. Well, the air quality has worsened due to a combination of factors, including stubble burning in neighboring states, vehicular emissions, construction dust and unfavorable weather conditions. Well, the dense smog has led to a significant drop in visibility and health warnings for residents, especially those with respiratory issues. Well, authorities have issued advisories urging people to limit outdoor activities and take precautions against the harmful efforts of the polluted air. कार लगाई है सरकार को और कहा है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई कार्रवाई करें। स्कूल बंद कर दिए गए हैं क्योंकि जो हमारे लोगों का जीना है वो दुर्भर हो चुका है। और दिल्ली की जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी थे, अब आतिशी जी हैं, और दिल्ली में साल दर साल ये केवल वादे करते हैं और इन्होंने अभी तक पॉल्यूशन के ऊपर कुछ भी नहीं किया। स्थिति आपके सामने है। दिल्ली गैस चैम्बर फिर दोबारा बन चुकी है। केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने स्मोक टावर लगाए, मगर वो स्मोक टावर केवल दिखावे के हैं। दिल्ली की जनता आज ये महसूस कर रही है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार को हो चुके हैं दिल्ली के अंदर, मगर दिल्ली में स्थिति जो है पॉल्यूशन के ऊपर वो बद से बदतर हो चुकी है और हमें आगे भी कोई उम्मीद नहीं है सरकार से कि वो यहाँ पे स्थिति को कुछ सुधार करेंगे। मेरा नाम अनिमेश है। दिल्ली में आजकल बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, जिससे दिल्ली वालों का, छोटे बच्चों का, मेरा छोटा बच्चा है, उसका मतलब लगातार थोड़ा सा भी बाहर ले जाओ तुरंत तबीयत खराब हो जाता है। ऐसे ही कई सारे बच्चे जिनका तबीयत खराब हो रहा होगा लगातार। हम तो गवर्नमेंट से चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर हल करे। केजरीवाल सरकार ने इसके ऊपर स्मोक टावर का भी ऐलान किया था, बनाया भी 2 स्मोक टावर, बट पता नहीं वो काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसकी कोई जानकारी नहीं है। ना दिल्ली वालों का है, ना हमको है, और ना ही सरकार को भी नहीं होगी उसकी जानकारी, मेरे को लगता है। तो सरकार इसको देखे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर बहुत बढ़िया फैसला दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए सरकार को इसके ऊपर कुछ न कुछ जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए दिल्ली सरकार को। Well, toxic foam was seen floating on the surface of the Yamuna River with visuals captured from Kalindi Kunj in Delhi, showing the alarming sight. Well, the foam, a result of high levels of pollutants and untreated sewage in the water in the river, has become a recurring environmental issue. Well, the presence of toxic foam poses serious health risks and highlights the ongoing challenges of cleaning the Yamuna, one of the India's most polluted rivers, and the visuals serve as a stark reminder of the urgent need for comprehensive measures to reduce pollution and improve water quality in the river.
Well, those were the latest updates in Inside News. Keep watching CVR News English. This is Havila Kottapalli. Have a good day.